Okay, I'm just setting things up. Just give me a minute. Moment. Okay. Uh, okay. Everybody is able to see the screen. Yes, sir. Okay, great. Yes, Um, sir. just to remind all of you a few things. One is the fact that there are 21 people who have joined in, but of course, there are so many other students in the class. If the students are not joining today, not to worry. I'm recording the class and I will share the video after the class end. ठीक है ना क्लास खत्म होने के बाद में जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वीडियो की क्योंकि बड़ा वीडियो बनने वाला है 40 मिनट का तो आई विल रिकॉर्ड द वीडियो एंड आई विल शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू आफ्टर द वीडियो एंड्स मतलब क्लास खत्म होने के बाद में मैं शेयर कर दूंगा ठीक है okay, let's get started. We were talking about what were we talking about? We were talking about strings, concatenation of the strings. Okay. Now, yes. Okay. 1 minute. Okay. So strings concatenation we are talking about, and तो strings concatenation के बारे में हमने बात करी कि अगर हमारे पास में दो strings है या multiple strings है हम उनको जोड़ के single string बना सकते हैं. Let's just revise what string concatenation is and let us see कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा strings है हम उनको जोड़ के single string बना सकते हैं, right? So for example, if suppose we have a equals to Kendriya, b equals to Vidyalaya, ठीक है. अगर these are the two strings that we have, if I write c equals to a plus b, what will be the answer? c is equal to a plus b का आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा कोई बता सकता है? Anybody can tell me what the answer would be? केंद्रीय विद्यालय. केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय. विद्यालय. हाँ केंद्रीय विद्यालय, but the thing is it will be केंद्रीय विद्यालय. कोई स्पेस नहीं होगा. No spaces. ठीक है. वही There नहीं will not होगा. be any space. Why will not there be any space? Because हमने कोई spaces यहाँ रखा ही नहीं. There is no space in the string. There is no space in the string. So the entire answer would also not have any spaces. Okay. Um, so this is how you can concatenate couple of strings. You can concatenate as many number of strings as possible. Okay. So suppose I have b equals to we have b सर equals to हाँ बोलो. सर आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ तो वो मुझे शो नहीं कर रहा. तुम you just disconnect yourself and then join back. I think you will be able to see the screen. ओके. Okay. So suppose I have another screen. सब बाकी सबको screen दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? यस सर. Yes, sir. सर दिख रहा है. Okay. Cool. So suppose I have another string d is equal to number one Kachapada. Okay. So if I add this string, if I add this string to c plus d, e equals to c plus d, then what will happen? It will create Kendriya Vidyalaya in capitals. So A N D R I Y A
विद्यालय के बीच में कोई स्पेस नहीं है, नंबर 1 के बीच में भी कोई स्पेस नहीं होगा, लेकिन कांचरापाड़ा के बीच में स्पेस होगा क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग में मैंने बीच में स्पेस दे रखा है, राइट? Okay, so we can Yes, sir. add as many number of strings as we want to create a combined string of a long combined सर string. हाँ बोलो। सर अगर हम केंद्रीय के बाद एक स्पेस देके फिर कोटेशन दे तो फिर केंद्रीय विद्यालय हाँ में वो बीच आ में स्पेस जाएगा आएगा, ना? बीच में स्पेस आएगा, यस एब्सोल्युटली। so if what Sampriti is saying is that अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, इफ आई कंसीडर कि यहाँ पे हमने एक स्पेस दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन वी विल बी एबल टू से कि नहीं नहीं यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है, देयर विल बी अ स्पेस। होल्ड ऑन, मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया थोड़ा सा। यस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वी एक्चुअली हैव स्पेस इन बिटवीन, ठीक है, केंद्रीय, एंड देन यहाँ पे क्योंकि स्पेस था तो यहाँ स्पेस आ जाएगा, एंड देन वी विल बी हैविंग विद्यालय। ठीक है, okay, so we can add spaces at the end of a string to have this kind of a distinction occur. This is what is concatenation, ठीक है। Now another concept that is there along with concatenation is very simple, you just have the plus operator। concatenation को करने के लिए हमको plus operator की जरूरत पड़ती है, we need the plus operator। now what do we need to keep in mind while we are concatenating strings? There are a few things that we need to keep in mind. Number one, we need to understand, note that concatenation can happen only between two strings, or two, not two strings but two collections of same type, two collections of same type। मतलब हम लोग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ string plus string will give me a string, ठीक है। लिस्ट, अभी लिस्ट हमने पढ़ा नहीं है, प्लस लिस्ट will give me a list, tuple plus tuple will give me a tuple, ठीक है। डिक्शनरी plus dictionary will give me another dictionary, ठीक है। बट अगर मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया, ठीक है, अगर मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया, अगर मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया, सर थोड़ा ऊपर करना। यहाँ से, ओके, अगर मान लो कि इफ आई राइट, यस सर, यस सर। इफ आई राइट स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, क्या होगा? एरर, So type error. टाइप एरर आएगी, यस एब्सोल्युटली, इट विल गिव अस टाइप एरर, ठीक है, इट विल गिव मी टाइप एरर, ओके। अगर मैंने मान लो इफ आई से कि मैंने दिया है स्ट्रिंग प्लस लिस्ट, ये भी मुझे एरर ही देगा, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के दो कलेक्शन को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। कन्वर्शन कैन हैपन ओनली बिटवीन कलेक्शंस ऑफ सेम टाइप। एक कलेक्शन के साथ में एक इंटीजर को नहीं जोड़ सकते, एक मतलब डिफॉल्ट, मतलब क्या कहते हैं उसको, नॉन कलेक्शन डेटा टाइप को नहीं जोड़ सकते, एक टाइप ऑफ कलेक्शन के साथ दूसरे टाइप ऑफ कलेक्शन को भी हम नहीं जोड़ सकते। वी कैन ओनली अटैच टू कलेक्शंस ऑफ द सेम टाइप, ओके। वो कलेक्शन जो सिमिलर टाइप के हैं उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, वरना बाकी को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है, आर यू नोटिंग दिस डाउन? शुड आई वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स? यस सर, यस सर, नोट। ओके, नोट इट डाउन, आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स।
So it's done. एवरीबॉडी फॉर एवरीबॉडी इट इज डन. वैसे यू डोंट हैव टू वरी, अगर तुम लोग का कुछ छूट Yes, भी sir. जाता है ना, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है. आई शेयर द वीडियो रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू गेट इट. और मैं इसका नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी भेज दूंगा तुमको, चिंता मत करो. आज जो नोट्स हम लोग क्लास में करेंगे उसका भी नोट्स मैं भेज दूंगा तुमको. डोंट वरी, ठीक है. यू कैन नोट इट डाउन लेटर ऑन आल्सो. तो दिस इज अ थिंग. तो अब दूसरा पॉइंट क्या है जो याद रखने वाली है, तो द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, जो हमने पिछले दिन बात भी करी थी थोड़ी बहुत, कि अ, जब हम concatenation करते हैं, concatenation will create new object and not make any changes to the existing object. ठीक है. concatenation will create a new object and not make any changes to the existing object. ठीक है. however क्यों नहीं करेगा? because हमको especially for a string concatenation cannot make any changes to the existing object because अरे बताओ क्यों चेंज नहीं कर सकता है स्ट्रिंग? ऐसा स्ट्रिंग का ऑपरेशन है ना, तो स्ट्रिंग के ऑपरेशन में दूसरा कुछ आएगा. कॉन्केटिनेशन में हम लोग चेंजेस क्यों नहीं करते? वो न्यू ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करता है? व्हाई डजंट इट So चेंज? ये इम्यूटेबल होता है immutable है. ना, Immutable इम्यूटेबल होता है. होता है Immutable होता स्ट्रिंग. Absolutely, yes, absolutely. It cannot make changes to the existing object because it is immutable. Absolutely right. Yes. So तो वो एक कारण है. बट none of the concatenation will make any changes. मतलब चाहे वो strings में हो, चाहे mutable data type में हो, या चाहे immutable data type में हो, concatenation always creates a new object. It doesn't make any changes to the existing object. ठीक है. तो उसका हम लोग पिछले दिन देख रहे थे ना. Was I showing it to you in school? I don't remember if I was showing it to you in school. मैं फिर से बता देता हूँ. हाँ, स्कूल में देख रहे थे. बैलून बना रहे थे हम लोग. बैलून बना रहे थे कि मान लो मेरे पास एक बैलून है. उस बैलून में केंद्रीय लिखा हुआ है और दूसरा बैलून है जिस बैलून में विद्यालय लिखा हुआ है. ठीक है. अब जब मैं कॉन्केटिनेशन करता हूँ तो मैं ना ही मैं इस बैलून में कोई चेंजेस कर रहा हूँ, ना ही इस बैलून में कोई चेंजेस कर रहा हूँ. ये तो बंधा हुआ है. ठीक है. दिस इज अटैच्ड. ठीक है. दिस इज अटैच्ड टू ए, दिस इज अटैच्ड टू बी. व्हेन आई डू a प्लस बी, तो वो एक नया बैलून बनाता है जिस बैलून के अंदर में केंद्रीय एंड विद्यालय दोनों आता है. ठीक है. एंड देन अगर मैंने उसको एक सी वेरिएबल में डाला है तो इट विल हैव अ सेपरेट रेफरेंस ऑब्जेक्ट. बट अगर मैंने सेम a इक्वल्स टू a प्लस बी लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका जो रेफरेंस है, a का जो प्रीवियस रेफरेंस है, उस रेफरेंस को मैं काट दे रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि ये रेफरेंस अभी एग्जिस्ट करता है. एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट. a इक्वल्स टू a प्लस बी लिखने का मतलब यही हुआ कि मैं जो a वेरिएबल का जो नया रेफरेंस है वो मैं नए ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ दे रहा हूँ. ठीक है. a now refers to the new object rather than the old object. इसका मतलब ये नहीं कि ये ओल्ड ऑब्जेक्ट गायब हो गया, डिलीट हो गया. नहीं, ये ओल्ड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है. बट वी डू नॉट हैव एनी रेफरेंस. वी डू नॉट हैव एनी रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई वी वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट एनी फर्दर इन आवर प्रोग्राम. जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो वो तब ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगी. बट जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता है तब तक दिस memory is already allocated. ठीक है. ये memory allocation रहेगी. बट we would not be able to access the value. ठीक है. हम लोग इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है. हम इसका एड्रेस खो चुके हैं. ओके. वो बैलून उड़ गया हवा में. ठीक है. धागा टूट गया तो बैलून हवा में उड़ गया, तो नहीं नहीं एक्सेस कर पाए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी से कि concatenation will always create new objects and it will not make any changes to the existing object. ठीक है. तो ये दो पॉइंट्स है जो concatenation के बारे में वी शुड ऑलवेज नोट. ठीक है. हमको याद रखने की जरूरत है. ओके. सो नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी सिमिलर टू concatenation. जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रिपीटेशन. आई डोंट नो कि मैंने रिपीटेशन का स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, बट आई इट इज आई आई कौन से में ए. रेपिड नहीं, रेपिटेशन में आई नहीं होता है. अरे नहीं, टी ए की जगह. TITION रिपीटेशन.
हाँ ठीक है। ये आप पढ़ाइए, हाँ आप पढ़ाइए। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा कॉन्सेप्ट है स्पेलिंग का? रेपिटेशन। ठीक है। आई एम नॉट श्योर। अरे क्या कर रहा है रे। रेपिटेशन, रेपिटेशन का स्पेलिंग नहीं नहीं, ये गलत हो गया स्पेलिंग। रेपिटेशन, ये सही सही सही। ओके, सो व्हाट इज रेपिटेशन? रेपिटेशन का मतलब, अगर मैं किसी एक स्ट्रिंग को बार बार लिखना चाहूँ, जैसे हम लोग हाउ डू आई पुट इट, कौन सा स्ट्रिंग का ले, मान ले a इक्वल्स टू हमने लिख रखा है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गई। ठीक है, मान लो कि मैंने लिख रखा है a इक्वल्स टू ओम। ठीक है, ठीक है, अब मैं बार बार आई एम गोइंग टू चैंट द ओम मंत्रा ऑल ओवर अगेन, हर बार चैंट करना चाहता हूँ। कितने बार चैंट करना चाहता हूँ? 108 बार चैंट करना चाहता हूँ। हम लोग करते हैं ना, तो वी आर चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड। कैसे करेंगे 108 बार? ठीक है, क्या तुम बार बार कॉन्केटिनेशन करके लिखते जाओगे, ओम ओम लिखते जाओगे, या फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 108 बार लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? नो हाँ, उसमें तो इतना टाइम चला जाएगा कि यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर थिंग, कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है ये रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, स्टार ऑपरेटर का। लेकिन सर भगवान के मामले में शॉर्टकट नहीं मारनी चाहिए। अब ये भी भगवान ने ही हमको तरीका दिया, बुद्धि दिया है, ताकि हम भगवान को आसानी से बुला सके, है ना? नहीं आएंगे, हाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भगवान ने सिखाया कि भाई शॉर्टकट ऐसे मेथड। कुछ बिना कुछ ऐसे इंटू 108 करके थोड़ी आ जाएंगे। अब जो भी है, एनी हाउ, तो अगर मैं मान लो कि मैं लिखना चाहता हूँ कि फाइनल बी इक्वल्स टू, अब अगर स्टार ऑपरेटर का यूज करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह ही यूज करते हैं एकदम। यहाँ पे वी आर गोइंग टू गिव द नंबर, स्टार के बाद में वी आर गोइंग टू गिव द नंबर। तो मान लो ए को मुझे कितने बार रिपीट करना है? 108 टाइम, 108 बार रिपीट करना है। तो मैं ए स्टार 108 लिखूंगा, तो इट विल बेसिकली ओम 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 करके करके 108 बार दिखता रहेगा। ठीक है, सो वी विल बी एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग रेपिटेशन का यूज करके। ठीक है, सो यू कैन राइट रेपिटेशन इज यूज्ड टू रिपीट द सेम स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स या n नंबर ऑफ टाइम्स, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, यू कैन राइट repetition is used to repeat a string n number of times, n number of times, where n is an integer। ठीक है, n जो है वो क्या है? n is an integer। ओके, सर पॉजिटिव Yes, sir. इंटीजर, हाँ पॉजिटिव वैल्यू होगा। हाँ, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एब्सोल्युटली इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एब्सोल्युटली। मैंने कभी नेगेटिव इंटीजर डाल के देखा नहीं है कि क्या होता है। आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन, मैंने नहीं कोशिश किया, तो मेरे ख्याल से एरर होना चाहिए। चलो चेक करके देख लेते हैं। गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लेट अस सी, टेस्ट करके भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि s इक्वल्स टू हमारे पास में है, क्या बोला? ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? s 108 बार तो मैं नहीं करूंगा, कर सकता हूँ वैसे। प्रिंट s स्टार 108, 108 बार अगर मैं प्रिंट करूं, तो ये देखो बार बार ओम 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 करके प्रिंट करके आ गया 108 टाइम। ये 108 टाइम्स लग नहीं रहा है, इज इट 108 टाइम्स? आई डोंट नो, सर डजंट लुक लाइक 108। एनीहाउ, बोलो बोलो बोलो। सर अनुष्का, हाँ सर, अगर
एक के नीचे 1 एक। million times. अरे यार, अगर एक के नीचे एक प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे? एक के नीचे एक प्रिंट करना होगा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम्म, बैक स्लैश एन डाल देंगे। कूल, बहुत ओके। बड़ी गलती कर दी मैंने, इतना बड़ा। अनुष्का मिलियन दे के ट्राई कर तो। फिर मैं तो वही बोल रही तुम बकवास नहीं, अपना काम करो यार। बकवास नहीं, ठीक है। ओके, सो लेकिन अभी अभी एंड्रयूज ने बोला कि माइनस नंबर देके चेक करके देखते हैं, अगर मैं -10 दिया तो क्या होगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, मैंने रन करके देखा नहीं कभी। देखो, इट इज नॉट गिविंग मी एन एरर, इट इज नॉट गिविंग मी एन एरर, हाउएवर इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, ठीक है। सो -10 अगर हम देंगे तो इसमें कोई एरर तो नहीं दे रहा है मुझे, बट इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, ठीक है। इट्स लाइक प्रिंटिंग द एलिमेंट फॉर 0 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। शिफ्ट एंटर करके देखते हैं। पॉसिबल नहीं है। हाँ। अगर मैं एक बार लिखूंगा तो ये एक बार प्रिंट करेगा, अगर 2 बार लिखूंगा तो 2 बार प्रिंट करेगा। लेट्स डू दिस ना, एक टेस्ट करके देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। आई इन फॉर आई इन रेंज, देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो लोग के दिमाग से बुद्धि निकल जाती है और फिर हम लोग टेस्टिंग करना भी शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि मैं 10 से -10 तक प्रिंट कर रहा हूँ, या -2 तक प्रिंट कर रहे हैं, -2 तक प्रिंट कर रहे हैं विद स्टेप ऑफ -1, ठीक है। एंड आई एम प्रिंटिंग एस स्टार आई, ठीक है। आई नंबर ऑफ टाइम्स एस को प्रिंट करेगा, पहले 10 बार, फिर 9 बार, फिर 8 बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, उस तरह से, है ना। यू अंडरस्टैंड दिस रेंज फंक्शन ना, ये रेंज फंक्शन क्या काम कर रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये रेंज उल्टा चल रहा है, Yes, sir. कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा एंड ये -1 पे जाके खत्म खत्म होगा। 10 से शुरू होगा और -1 पे जाके खत्म होगा एंड इट विल गो विद द स्टेप ऑफ -1, ठीक है। तो हम लोग एस इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स नॉट डू दिस, इसको नहीं करता, ठीक है, ठीक है। सो यू सी द फर्स्ट टाइम इट इज प्रिंटिंग फॉर 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, एंड उसके बाद में इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। ये देखो 2 बार स्पेसेस आया है यहाँ पे, तो ये 0 नंबर ऑफ टाइम्स है, ये -1 नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर मैंने ये -2 की जगह -10 दे दिया तो यू विल फाइंड 10 स्पेसेस हियर, ठीक है। 10 बार स्पेस देखोगे, ये देखो there are 10 spaces, -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू -9 तक जितने भी वैल्यूज थी, हर एक जगह पे देयर इज नथिंग गेटिंग प्रिंटेड, ठीक है। सो इट्स नॉट गिविंग अस एन एरर, नेगेटिव नंबर देने से एरर नहीं दे रहा है, बट इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, इट विल प्रिंट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सर बोलो। सर ये तो पैटर्न हो गया ना, मतलब पैटर्न का ही तो इजी वर्जन हो गया। ये पैटर्न का इजी वर्जन, मतलब आई नेवर वांटेड टू प्रिंट इट एज अ पैटर्न, बट अभी देखो पैटर्न की तरफ प्रिंट हो रहा है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग आउटपुट। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं ये किया था, रेंज हम क्यों ही लगा। मैं तो मैं तो बस ऐसे ही प्रिंट कर दिया, मैं तो बस देखा कि चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होता है, तो डिड इट। नहीं मतलब सर फिर हाँ जे बोलो, रेंज की क्या जरूरत। बोल अरुण। सर इससे तो हम क्या बोलते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल ओम ओम करके डायमंड स्ट्रक्चर बना दो। हाँ सर स्टार करके भी बना फिर सकते हैं, सर भगवान को एम चढ़ा की देना। जगह स्टार ले लेंगे तो। हाँ स्टार करके भी बना सकते हैं, बिल्कुल स्टार करके बना सकते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव अभी स्टार का नहीं है। हम लोग रिपीटेशन पढ़ रहे थे, रिपीटेशन के अंदर से हमारा अभी चला है, हम स्टार पे जा रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द रिपीटेशन कॉन्सेप्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से हम रिपीटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर रिपीटेशन कॉन्सेप्ट का यूसेज क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज कहाँ करेंगे कॉन्कैटिनेशन या रिपीटेशन की, प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज क्या होगी। वेल प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज एक तो पैटर्न प्रिंटिंग के लिए यूज हो सकता है, डेफिनेटली पैटर्न प्रिंटिंग के लिए यूज हो सकता है, एंड देयर कैन बी अदर एग्जांपल्स एज वेल। अभी मेरे दिमाग में कोई ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एन एग्जांपल जिस पे हम लोग रिपीटेशन का यूज करें। कॉन्कैटिनेशन का डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, देयर कैन बी there can be ways we can use concatenation to create passwords. There can be ways to use concatenation to create unique ID numbers, unique ID codes को यूज करके हम concatenation का यूज कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में
हम किसी एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर कर रहे हैं और हमको एम्प्लॉय नंबर जनरेट करना है, ठीक है, एंड द एम्प्लॉय नंबर शुड बी string which is consisting of a few things. It is consisting of the first letter of the employee should be E because employee, ठीक है, उसके बाद the next two digits should be should be what should be the year of joining, ठीक है, the next two digits should be the next five digits should be their employee code actually, ठीक है, जैसे तुम्हारा UBI ID नंबर है, have you ever noticed your UBI ID नंबर? हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक डिफॉल्ट यूबीआई आईडी नंबर चेक करूँ, कोई भी एक डिफॉल्ट आईडी नंबर अगर मैं देखूँ 061277 124, उसके लास्ट 5 नंबर एडमिशन नंबर होता है ना? हाँ 12, मान ले 123 12345, ये नंबर है मान लेते हैं, ठीक है, 012345, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। जरा 2 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, 2 मिनट। ओके, यस, सो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अगर डिफॉल्ट यूबीआई आईडी नंबर है, ठीक है, तुम लोग का जो यूबीआई आईडी नंबर होता है, इस पे तुम नोटिस करके देखो, द फर्स्ट टू डिजिट्स 06 इज योर स्टेशन कोड, ठीक है, जिस स्टेशन पे हम एग्जिस्ट करते हैं उस स्टेशन का स्टेशन कोड है 06, ठीक है, देन 1277 ये हमारे स्कूल का कोड है, केवी कोड, ठीक है, देन 1 1 शोज कि ये फर्स्ट शिफ्ट का स्कूल है, सेकंड शिफ्ट नहीं है, 24 शोज की जो एडमिशन है वो 2024 में हुआ है, और उसके बाद के जो 6 डिजिट्स हैं ये तुम्हारा एडमिशन नंबर है। ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मेरा यूबीआई आईडी नंबर। तो अगर मुझे इस तरह का कोई नंबर जनरेट करना हो, यूनिक आईडी नंबर जनरेट करना हो, तो मैं कॉन्कैटिनेशन का यूसेज करूँ। ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्कैटिनेशन। सर, बोलो अरे चुप रहो। हेलो सर। बोलो। सर आप इसका प्रैक्टिकल कब कर हाँ, सर आप इसका प्रैक्टिकल कब करवाने वाले हो? इसका प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा व्हेन वी अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते से विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल्स आल्सो, एंड विल अगर तुम लोग ये कॉपी में नोट करके रखोगे ना तो यू विल बी एबल टू डू दैट इन प्रैक्टिकल्स एज वेल, सो दैट यू कैन वर्क विद इट। मतलब हम लोग इसको कैसे करेंगे बोलते हो? अच्छा अभी अभी मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी तो टाइम हो गया, तो 5 मिनट बचा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। हम लोग अपना यूबीआई आईडी सर नंबर जनरेट, आपने अभी तक बस एक ही प्रैक्टिकल करवाया है ना? हाँ अभी मैंने बस एक दिन ही प्रैक्टिकल करवाया है, उसमें भी मैंने 2-3 प्रैक्टिकल करने को साथ में बोला था, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 3-4 प्रैक्टिकल कर रखा है, छोटा छोटा प्रोग्राम्स है, डजेंट मैटर, मैं करवा दूंगा। अभी अभी अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल से ये स्टॉर्म थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद अगले हफ्ते से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स, आज के लिए लास्ट टास्क हमारा ये है कि हम लोग अभी एक यूबीआई आईडी नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है, लेट्स क्रिएट आवर यूनिक आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर, ठीक है। कैसे करेंगे? विल टेक कितनी कितनी चीजें हैं इसमें, स्कूल कोड है, स्टेशन कोड है, शिफ्ट है, ईयर है और एडमिशन नंबर है, तो 1 2 3 4 5 5 चीजें हैं। लेट्स टेक 5 नंबर्स एंड देन विल मर्ज देम टुगेदर टू क्रिएट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग इसको एक प्रोग्राम में लिखते हैं कि लेट्स कीप दिस प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यूजर से इनपुट लूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशन कोड, स्टेशन इज इक्वल टू int input
ठीक है, इंट इनपुट एंटर स्टेशन कोड। ठीक है, ये प्रोग्राम को यू कैन नोट इट डाउन, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम होगा। इसी प्रोग्राम को हम कोड करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, स्कूल, ठीक है, इंट इनपुट एंटर स्कूल कोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्कूल कोड के बाद क्या था, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट एंड इनपुट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंटर 1 फॉर मॉर्निंग एंड 2 फॉर आफ्टरनून। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 1 दबाएंगे और आफ्टरनून शिफ्ट के लिए 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, इंट इनपुट एंटर ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एडमिशन नंबर। ठीक है, इंट इनपुट एडमिशन नंबर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इनपुट करने के बाद हम लोग जो है इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे। ठीक है, वी विल कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे बोलो, तो यूबीआई नंबर इक्वल्स टू क्या करेंगे, यूबीआई नंबर इक्वल्स टू क्या करेंगे बोलो, कौन बताएगा। सारे को प्लस कर देंगे। स्टेशन प्लस, सारे को प्लस करेंगे, स्कूल प्लस शिफ्ट प्लस ईयर प्लस एडमिशन नंबर, राइट, यही करेंगे, प्रिंट यूबीआई नंबर। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं, लेट अस रन दिस। स्टेशन कोड कितना है हमारा, 06। ठीक है, स्टेशन कोड इज 06, स्कूल कोड 1277, मॉर्निंग स्कूल है या आफ्टरनून स्कूल है, मॉर्निंग स्कूल है, ईयर ऑफ एडमिशन 2024, एडमिशन नंबर 12। ठीक है, ये क्या अजीब सा नंबर आ गया, ऐसा नंबर क्यों आया, ऐसा नंबर क्यों आया। सर क्योंकि हमने उसको एज अ इंटीजर काउंट किया, स्ट्रिंग नहीं। वेरी गुड, वी हैव टेकन द इनपुट एज इंटीजर, तो मुझे इनपुट इंटीजर की तरह नहीं लेना है, मुझे इनपुट स्ट्रिंग की तरह उसने लेना प्लस कर दिया है। यस, इंटीजर को सारा। एब्सोल्युटली, क्योंकि इसको इंटीजर्स मिला तो इंटीजर्स को इसने प्लस कर दिया, तो हमको पता है कि प्लस ऑपरेटर अगर इंटीजर्स के साथ काम करे तो क्या होगा, एडिशन, लेकिन प्लस ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग्स के साथ काम करे तो क्या होगा, क्या होगा, कॉन्केटिनेशन। concatenation. So plus operator when used with a string will create concatenation, the plus operator when used with numbers will create addition. आया, नंबर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्केटिनेशन, ये प्रोग्राम हमारा कॉन्केटिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज कि हमने आज क्या क्या किया। ठीक है, हमने आज सबसे पहले कॉन्केटिनेशन की बात करी, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट कि ये प्लस ऑपरेटर का यूज होता है, जहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि केंद्रीय विद्यालय को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेगा, उसके साथ हम दूसरा स्ट्रिंग को जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे। फिर हमने कॉन्केटिनेशन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करी। पहला पॉइंट ये था कि कॉन्केटिनेशन सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शंस के बीच में हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन, लिस्ट के साथ लिस्ट का, टपल्स के साथ टपल का, डिक्शनरी के साथ डिक्शनरी का। अगर हमने टपल्स मतलब कलेक्शंस को ऑल्टरनेट किया, इंटरचेंज किया, तो वो वहां पे क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। कौन सा एरर थ्रो करेगा, टाइप एरर थ्रो करेगा, हमने यहाँ लिखा नहीं है, बट इट विल थ्रो अस
टाइप करें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल में कोड करके दिखा भी सकता हूँ। इफ आई डू दिस, इफ आई लाइक रन दिस कोड, ये देखो, अगर मैं एक कोड रन करा और जहाँ पे आई हैव ए स्ट्रिंग एज, मान लो ABC, एंड देन आई हैव अ नंबर एज 10, ठीक है। अगर मैं प्रिंट s+10 करूंगा, s+10 करूंगा या s+n करूंगा, तो क्या होगा, इट विल गिव मी अ टाइप कैन ओनली concatenate string not integer to string, ठीक है। अगर यहाँ 10 के जगह एक लिस्ट होती तब भी it would have given me a error, can only concatenate strings not list to string, ठीक है। it would have given me the same answer, clear, Yes. ठीक है। नाउ यस सर। इसके बाद हमने बात करा कि दूसरा पॉइंट क्या है कि concatenation will create new objects and it will not make any changes to the existing objects. Then we talked about repetition. रिपीटेशन के लिए हमने बात करा कि हम जो है स्टार ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड वी सॉ कि हम लोग रिपीटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। और रिपीटेशन के बारे में हमने लिखा कि रिपीटेशन इज यूज्ड टू रिपीट अ स्ट्रिंग n नंबर ऑफ टाइम्स वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें एक पॉइंट नोट करके रख लो, जैसे हमने अभी बात करा ना, तो जस्ट ऑल्सो नोट दैट पॉइंट कि व्हेन यू हैव रिपीटेशन विद अ नेगेटिव इंटीजर, then it will not throw an error, but it will not print anything, it will print an empty string. When zero or negative integer is used, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है for some reason, just write it here कि when zero or negative integer is used, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, don't worry, then an empty string is returned, ठीक है। then an empty string is returned, एक empty string तुमको लौटाएगा, ठीक है। जब हम जीरो या नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं फॉर रिपीटेशन, यूज्ड फॉर रिपीटेशन, देन एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग तुमको रिटर्न करता है, ठीक है। सो वी नीड टू नोट, ये हम नोट करते हैं। सर बोलो। सर रिपीटेशन में तो हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर ही इंटू करना पड़ेगा, हम लोग यस, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग नहीं कर सकते। नहीं स्ट्रिंग के तो साथ फिर इंटीजर नहीं कर सकते। अगर हम यूजर यूजर इनपुट ले हाँ एक हाँ, इंटीजर का और उस इंटीजर को आपके स्ट्रिंग के साथ इंटू करे तो होगा? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो लाइक इंटीजर आपने होना चाहिए, इंट 100, इनपुट होना चाहिए। हाँ हाँ वही इंट मैं बोली अगर आप 108 अगर आपको यूजर इनपुट लेना है कि हाँ यूजर, कितने बार बोलना है, बिल्कुल बिल्कुल ले तो सकते हैं, फिर सोचिए बिल्कुल ले अगर वो सकते सी में है तो मैं ए इंटू सी कर सकती हूँ। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ना, अगर ओके मैंने अगर मैंने यहाँ n इक्वल्स टू int input enter time number of times ये लिख दिया, ठीक है, एंड आई प्रिंट द सेम, प्रिंट s into n, ठीक है। इफ आई रन दिस कोड, तो एंटर नंबर ऑफ टाइम्स मैं 10 बार रन करना चाहता हूँ, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ टाइम्स 10 टाइम्स, तो ओम 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 10 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोड हटा दिया ना, तो उसको हटाना नहीं, रखना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेटर, दिस इज बेटर, ठीक है। तो ये, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करके कर रहे थे, तो उसका भी आउटपुट यहाँ दिखा रहा है, एंड जब हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स दे रहे, तो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ टाइम्स दे रहे उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो आएगा, ठीक है। एंड वी फाउंड आउट कि जब हम जीरो या नेगेटिव इंटीजर्स देते हैं तो वो रिपीटेशन नहीं करता, वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये हमारा आज के डेट का
टास्क था, ये हमारे आज के डेट का क्लास था। इसकी रिकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगी। आई होप कि क्लास वाज इंटरेस्टिंग एनफ फॉर यू टू एंजॉय। लेट अस एंड द क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। सर आपने जो बाय नोट्स सर। लिखवाया है एक बार उसका सारा पेज एक बार दिखा दीजिएगा। कौन सा पेज? जो भी आपने नोट्स लिखवाया। मैं नोट्स तुमको पीडीएफ भेजता हूँ ना, अभी भेज देता हूँ। ओके सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू।